दिस इज़ द डायरी और यहाँ ऊपर लिखा है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार। सो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल चिल्ड्रंस। और मैं कहूँ तो झारखंड में विद्या एजुकेशन इज़ जस्ट इन पेपर्स एंड इन रिपोर्ट्स। इन रियलिटी इट इज़ जस्ट शैलो एंड जस्ट हॉलो। और इसी बात पे अभी आपको पता ही होगा कि झारखंड में अभी आपका प्रोटेस्ट चल रहा था and the media is busy covering it 24/7 hours. इसी बीच वी सी कि किस तरीके से लाठीचार्ज हो जाता है एंड हाउ द स्टूडेंट्स आर ब्रूचुअली beaten after the sunset so that no media can cover it. During the daytime, the STM gives the permission to protest peacefully, but after the sunset, they are beaten brutally without any notice or without any prior culprit like action. But somewhere in this coverage and in this protest, in you can see कि किस तरीके से spice and just the chilies are showed by the media. The thing, the actual demands which must be shown by the media, it is somewhere comes in a blurred vision to the civils. Media highlights the political parties, highlights that how brutally the students are beaten up, but it somewhere blurs the demands that which is kept forward by the students. And just due to that, the corrupted student leaders and the corrupted political leaders are getting a spotlight to shout and encourage their corruption more and more. Meanwhile, there's many are offering food to them, but my question is that कि भाई when the student was crying for hostel rooms and crying that how he or she will pay the mess fees, then where you were? आप उस वक्त उसे खाना क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे थे फ्री का? आप एजुकेशन के टाइम से फ्री खाना, फ्री वाटर एंड फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, बट व्हेन द प्रोटेस्ट टाइम केम you are becoming kind and generous. And one more thing is that if you will move through the Kachhari road during 1 p.m. or 1:30 p.m. between that, you will see that these student leaders are offered by prostitutes. And day before yesterday, when I was returning from the protest site, I saw that many persons were carrying sellotapes, bundle के bundle, and they were moving towards that protest site. मतलब कि the protest is done by the students, but its framework and that spotlight wala view is designed by someone else sitting above them, whose face is hidden between this chaos. When I went to the protest site and talked with many students, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे वो उनके कॉलेज के वैसे स्टूडेंट लीडर्स आए हुए हैं जो कि खुद करप्टेड हैं, कॉलेज में इलीगल काम करते हैं और यहाँ आकर के वो भाषण दे रहे हैं. मतलब कि यू विल वंडर कि भाई ऑनेस्टी का इतना बड़ा भाषण वहाँ जा कर के दे रहे हैं, एंड व्हेन दे रिटर्न टू देयर ओन एरेना they play the game of corruption 100% efficiency के साथ. Yes, I know that की वॉइस को रीच कराने के लिए स्पॉटलाइट की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और शाउट्स की ज़रूरत थी स्टूडेंट्स को, बट दिस डजेंट मीन दैट यू ब्लर the demands of the students and you are highlighting your own spotlight and the students are just like हैं what is happening. मतलब कि मैं तो यहाँ अपने डिमांड्स लेकर के बैठा था, मार मैं खा रहा हूँ और स्पॉटलाइट भी किसी और को मिल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है. जैसे कि मीडिया दिखा रही थी कि आयशा वाले आह्वान कर रहे हैं विधानसभा मार्च करने के लिए, लेकिन द थिंग वॉज दैट शी had did nothing there. Means she has just reached there और उन्होंने केवल स्पॉटलाइट खींचने का काम किया था.
वो आह्वान खुद स्टूडेंट्स का था। विधानसभा में मार्च करने का परमिशन खुद स्टूडेंट्स ने लिया था। एंड द झारखंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल गवर्नमेंट। मीन इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द violence makers, they beaten up the innocent students. The bottom line is that कि भाई एज अ स्टूडेंट आई थिंक दैट कि जिस तरीके से हमने ग्रुप्स बनाए प्रोटेस्ट को अहेड करने के लिए, फर्दर करने के लिए, उसी तरीके से क्या हम अपनी क्लास में ही 4 का ग्रुप, 6 का ग्रुप, 10 का ग्रुप नहीं बना सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए? क्या हम ग्रुप बना सकते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, एवरीथिंग के लिए? तो क्या उसी ग्रुप में हम लोग एक साथ बैठ कर के पढ़ाई नहीं कर सकते? जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट में बैनर लेकर के शोर कर रहे थे, स्पॉटलाइट खींच रहे थे, क्या वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख करके, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स लिख करके, साइंस, विज्ञान, फिलॉसफी, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं? ताकि एजुकेशन भले गवर्नमेंट दे या ना दे, हम अपने जनरेशन को देते हुए जाएं। हमारी जनरेशन केवल हमें इसलिए ना याद करे कि भाई उन्होंने आवाज़ उठाई थी, बल्कि इसलिए भी याद करे कि आवाज़ उठाने के साथ साथ उन्होंने ज्ञान का प्रसार और प्रचार भी किया था। और जिस तरीके से उन्हें हेल्प मिली थी, फूड्स प्रोवाइड कराए गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, आई वॉन्ट कि भाई स्टूडेंट रोज आता है, एक एक पैसा बचा करके, कभी वो सेल्समैन की तरफ काम करता है, कभी मॉल्स में काम करता है, कभी झाड़ू पोछा, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करता है, जस्ट टू पे द फीस इन कॉलेज, द ट्यूशन फीस, मेस का चार्ज, रूम का चार्ज। तो प्लीज़ कम अहेड टू हेल्प देम in their daily life and help them in learning. I know that many learned persons are saying कि भाई पढ़ के क्या फ़ायदा जब आपको कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, आपको झारखंड सरकार एग्ज़ाम देने ही नहीं दे रही है, जहाँ पे आपको 26 बार एग्ज़ाम होने चाहिए थे JPSC के, केवल 14 बार हुए हैं। तो ऐसे में आप केवल एजुकेशन को स्प्रेड करके क्या करेंगे? एजुकेशन को स्प्रेड करने के बाद सोसाइटी विल गेट एजुकेटेड। And this will not happen just out of blue. It will happen slowly. स्टेट लेवल पे हमने तो बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट कर लिया, बट लेट अस कम टू आवर होम। लेट अस सी कि हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल्स में, हमारे छोटे से एरिया में कहीं वी आर नॉट एडिंग इन करप्शन ना। मतलब वो कहा जाता है नहीं, कहावत है कि भाई किस तरीके से कैलोरी लूज़ करनी चाहिए। Don't eat calories. That is the best way to lose calories. And the same way, किस तरीके से करप्शन रोकना चाहिए? Don't participate